cell of EMF 2 volts, मतलब 2 volts, 2V, V is 2V, and internal resistance, मैंने बोला था ना हर सेल का internal resistance भी होता है, that is 1.2 ohms, is connected to an ammeter. Ammeter also has some resistance. सब चीज कोई ना कोई resistance तो देता ही है. कुछ भी हमने सर्किट पे लगाया तो zero resistance तो नहीं होगा. So there is some resistance. The ammeter also has some resistance. Okay. And it is connected to this arrangement 4.5 or 9 ohms का एक arrangement. We have to find reading on ammeter. What does this mean? What does an ammeter read? Tell me, Samas. Current. Right. So can I say I have to basically find the current in the circuit? Second question. Potential difference across the cell. Potential difference across the cell. अभी जो ये potential difference across the cell जो हम लोगों को लेना है, ये 2 से कम होगा कि नहीं? हाँ. 2 से कम होगा, उसको हम लोग calculate करेंगे अलग से. But this is actually mostly not there in your scope. But I will teach you. Don't worry. समझ में आ जाएगा. Concept clear होगा तो forget about school. And potential difference across 4.5 ohm resistance. Across 4.5 ohm के resistor के across कितना potential difference रहेगा? This is what we have to find. The answers are already given to you. 0.4. Last question. 31. 1.52. 1.2 and 1.2. कैसे solve किया है इसको पहले? Let's try to understand the question. First, what are my resistances? Internal resistance, ammeter resistance, and this combination. Right? So always remember when potential difference, हमने ये चीज household circuit में और further clarify किया है. When we connect anything in parallel, anything is connected in parallel, so the whole voltage goes to that equipment or not? So ये सारे जो parallel में arranged है, so 1.2 volts इसमें है, तो ये equally distribute होगा कि नहीं ये दोनों में? क्योंकि ये दोनों का arrangement जो है, that is getting, that is basically the arrangement when I rectify the arrangement or when I actually find the current through the circuit or when I find the total, what do we call it, equivalent resistance of this. Then we can go further. So let's first find the equivalent resistance. So I am just taking this. 3. ठीक है, 4.5 and 9 ohms. RT is 3. So this is, let's say, my point A and B. ठीक है. So what do I have between A and B? I can say 1 upon resistance between A and B is equal to 1 upon resistance 1 plus 1 upon resistance 2. अरे क्यों 4.5 into 2? So 1 upon resistance between A and B will be how much? 1 upon 4.5 plus 1 upon 9. 4.5 और 9 मतलब क्या हुआ? 9 ही हो गया. 2 upon 9. 2 plus 1 upon 9 that is equal to 3 upon 9 that is equal to 1 upon 3. Therefore can I say R between A and B is 3 ohms. इसका समझ में आ गया? Now we come to the total resistance in the cell. Total resistance कितना है सेल? देखते हैं. ये मेरा सेल है. सेल में नहीं, सॉरी सर्किट में. ये कितना है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1.2. Then I have the ammeter which is also acting as a resistance. And how much is this? 3. 5. Can you understand what I have drawn here? ये बॉक्स क्यों बनाया मैंने? क्योंकि सेल का है वो इंटरनल रेजिस्टेंस. No, if you don't want to make the box, don't need. This is the internal resistance of the cell. So can you tell me now what is the total resistance in the conductor? The total resistance in the conductor is between terminal P and Q, which is the whole thing. Whole thing के P और Q को तो सब सीरीज में या पैरेलल में है? Series. So can I say resistance between PQ is equal to R1 plus R1 R2 तो गया, R2 R3 R4. 2 R1 2 R2 2 R3 जो नंबर दोगे पहले ही दे देना. पहले ही दे देना. So how much will it be? 1.2 ohms plus 0.8 ohms plus 3 ohms. That is equal to 5 ohms. So can I say the total resistance in the circuit R is equal to 5 ohms? Can I simply make the circuit like this now? 5 ohms and this is how much? 2 volts. What will be the current through this conductor?
equal to I. अभी हम लोग को क्या निकालना है पहले? रीडिंग ऑफ द एमीटर. रीडिंग ऑफ द एमीटर मतलब क्या? We need to find the I. We need to find the I. V is equal to IR. अभी मेरे पास क्या है? So V upon R is equal to I. So therefore I is going to be how much? 2 upon 5. That is equal to 0.4 amperes. A नहीं लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा. समझ में आ गया इधर तक? ये वाला बात करना है. उसके बाद क्या बोला है हमको? Potential difference across 4.2. Okay. Now. एक सेकंड आप लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं है. है कि नहीं बात बोलेगी. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बोला है मुझे? ओनली वन रेजिस्टेंस ना. सो कैन आई से potential difference across 4.5 ohm resistance V is equal to IR. करंट क्या है आपका? Across the cell ना. Across नहीं, across 4.5. सिर्फ इसके across कितना होगा? तो सिर्फ वाला कर रहे हो. इसी थर्ड वाला. ये वाला बाद में करते हैं. 4.5 ohms रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस से 4.5 लेंगे कि नहीं हम? 4.5 अगर ले रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस तो क्या होगा? I का वैल्यू पता है क्या आप लोगों को? I का वैल्यू है 0.4 एम्पियर्स. I का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, इक्वल ही जाएगा ना सबको करंट. और V upon I. V नहीं, V is equal to I into R. हाँ तो V upon I is equal to R. नहीं, V ढूंढना है बेटा. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5. सो I कितना मिला मुझे? 0.4. R कितना है? कौन से R के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं? 4.5. सो सिर्फ 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं उसको? हाँ 45. सो हाउ मच विल इट बी? 1.8 होगा ना. 45 into 4 is 1.8. 1.8. 1.2 क्यों आ रहा है? 1.8 volts आ रहा चाहिए. I'll check this. 4.5 के across. हाँ 180. 1.8 रुक जा. 4.5 minus इंटरनल कितना था इसका रेजिस्टेंस? 1.2. क्या हो रहा है? इसका वैल्यू क्या आ रहा है? नहीं ना, ये भी गलत. 0.4 into 3.3 कितना होता है? 1.33 है ना. वो भी नहीं है सही. 1.2 कैसा है? चेक दिस वन. लेकिन दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट. 0.4 into 4.5 दैट इज इक्वल टू 1.8 volts. हम एमीटर का भी रेजिस्टेंस लेना. नहीं एमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे तो हो रहा है क्या देखते हुए. अरे बेटा सिट डाउन. 4.5 minus 0.8 कितना है? 3.7. 3.7. हाँ 3.7 into 4. 3.7 हाँ. 3.7 into 4. 120 plus 148, 1.4. नहीं उसको नहीं कंसीडर करेंगे. there must be some mistake. This is how you are supposed to calculate it. You cannot take any other resistance. Next is your potential. Round कर लो. हाँ राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 Round. नहीं कोई जरूरत नहीं. I'll learn to do it. Don't worry. Potential difference across the cell. Now this is the part that you don't have. Why? Because but I will still explain it. कैसे कैलकुलेट करना. मैंने आपको क्या बोला? EMF क्या है? EMF दिया था ना मेरे को 2. मतलब क्या है उसका? That voltage drop plus the potential difference across the cell is EMF. So can I say EMF is given to be? V ढूंढना है ना तो उसमें इनका भी रेजिस्टेंस ये का और इसके एमीटर का बाद भी. इसीलिए मुझे वही मैं बोल रही हूँ. ये 1.8 क्यों आया मैं बताती हूँ. आप लोगों के स्कोप में ये पार्ट नहीं है. आप लोगों के स्कोप में ये पार्ट नहीं है. द क्वेश्चन हियर इज एक्चुअली फर्स्ट यू हैव टू आंसर दिस एंड देन यू हैव टू आंसर दिस. व्हाई यू हैव टू आंसर दिस फर्स्ट? आई टेल. ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे. नहीं क्वेश्चन ये आप लोगों को EMF नहीं बोलेंगे. आप लोगों को वोल्टेज अक्रॉस द करंट सर्किट ही देखिए. क्या दिया है समझो. यहाँ पे क्या दिया है आपको? पूरा EMF दिया है. मतलब वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज दिया है कि नहीं हमको? दोनों दिया है. वोल्टेज ड्रॉप actual voltage across the terminal that we use is lesser than
क्योंकि ईएमएफ इज अंदर का वोल्टेज ड्रॉप प्लस पूरा सर्किट का वोल्टेज है कि नहीं। तो अगर अंदर का वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे, उसको ईएमएफ से माइनस करेंगे, फिर हम लोगों को मिलेगा ना कि सर्किट में कितना वोल्टेज पास कर रहा है। Getting it? But since you don't have those kind of questions, that's why I have solved it. I've got 1.8. But what I'll do here is first I'll find the EMF. EMF is small voltage plus big voltage. That is voltage drop plus terminal voltage. Now, ये voltage drop किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड इलेक्ट्रॉन नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे उस पे। सो करंट मुझे मिल गया 0.4 एम्पियर्स पास कर रहा है। सो V इज इक्वल टू IR। So can I say I into small r? Small r is what? Internal resistance. Will give me the voltage drop. Will it give me the voltage drop? Plus ये तो बड़ा IR है, I दोनों का सेम है, करंट पूरे सर्किट में एक ही फ्लो करता है। Getting it? Getting what I am saying? So can I say EMF which is 2 volts is equal to I कितना है 1.2 into small r कितना है? I तो 0.4 है। 0.4 और small r कितना है? 1.2 ना? स्मॉल r मतलब ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट करेंगे तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा कि नहीं? वोल्टेज ड्रॉप प्लस IR, ये तो मुझे चाहिए नहीं, बिग वोल्टेज है ये पूछा है मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब EMF से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप माइनस करते हैं। समझ में आया? नहीं समझा तो फिर से समझाओ। So that is 0.48। so voltage is equal to how much? 2 minus 0.48। बट हम लोग के पास I और R दोनों है, 1.5 कैपिटल R वो तो हम लोग इधर से आए 1.5 से पहले किया। So how much did I get? 1.52. So can I say the voltage which is running through only the circuit will be 1.52 because I have subtracted the IR from the internal voltage drop. So can I say the voltage across the circuit is 1.52 volts? If the voltage across the circuit is 1.52 volts, then how much of it is passing through the circuit? 1.52. 1.52 is passing through the circuit. 0.4 into 0.4 into 4.5 minus 1. अभी मैं आती हूँ। अभी हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मिल गया, V मिल गया अक्रॉस द सेल। सो वी नो सेल के अंदर कितना पास कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.4 into 1.2 कितना है, 0.48। सो 0.48 वोल्टेज इसके अंदर का काम कर रहा है और 1.52 बाहर का काम कर रहा है। 1.52 करेक्ट। अभी 1.52 अगर बाहर का काम कर रहा है, कैन आई रब दिस? Yes. बेटा पैर हटा, देखो लग जाएगा। So the current flowing through this circuit now is how much? I is equal to 0.4 amperes. What is the voltage? 1.52 volts. So what is the resistance that I have over here? 4.5 से कितना पास करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। So what will be the potential difference across 4.5 volt? Okay. So current फिर भी तो current into ये करेंगे तो भी 1.8 ही आएगा। नहीं, अरे 0.4 into 4.5 minus 1. हाँ रुक जा। अभी सब डाल दो भाई, सब डाल दो भाई। नहीं रुको बेटा एक सेकंड। हमने पहले जैसे किया था ना, V is equal to IR। हाँ V is equal to IR करके ही करेंगे। But why should I consider this resistance? हम लोग को potential difference ही निकालना है। V is equal to मैम I का वैल्यू सेम ही रहेगा। R में हम लोग 4.5 से 1.4 नहीं उससे नहीं आएगा, उससे कभी भी नहीं आएगा। ये दोनों निकालेंगे तो आएगा। V is equal to IR. V is equal to I of R minus, let's call it R1 minus, let's call it small r. V is equal to 0.4 into 5 minus फिर इसको भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना उससे। नहीं दिस इज नॉट द मेथड। 1.8 ही है इसका वैल्यू, 1.8 ही है। ये सब गलत है।
तो सेकंड वाला आएगा नहीं ना पोर्शन में नहीं नहीं, सेकंड वाला आपको नहीं आने वाला, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही ढूंढ। तो हम क्यों कर रहे हैं वो फिर? अरे वो ठीक है, पहले मैं समझा दिया, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है अब तक तो वी थिंक दैट इट विल नॉट कम, बट डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ? हम रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, एक और डायग्राम लेते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलना है तुझे? निकाल देगी श्वेता, कुछ बोलना है तेरे को? नॉट सेफ फॉर वर्क। सब मम्मी देखती है अरे मम्मी को भेज दो, क्लिक कर। There is an ammeter, there is a resistance here, there is a resistance here, P और C क्या है? अच्छा, यहाँ भी एक ammeter है और यहाँ भी एक ammeter है। चलो ये ammeter वाला एक क्वेश्चन आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को क्या चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, रैंडम सब। सुनो, यहाँ पे वैल्यूज दिया है, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल 6 3 2 सेल है ये, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम A, B, C are 3 ammeters of negligible resistance, मतलब उन लोग का रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एमीटर B रीड्स 0.5 amps, B कितना रीड कर रहा है? ओके, B रीड्स 0.5 amps, B reads. So what do we have to find? Reading on A and C, total resistance and EMF. You have an EMF का part, mostly you don't have. So far. नहीं अभी तक नहीं है, but फिर भी कर लेते हैं, अगर पता समझ में नहीं आ रहा है। चलो, करंट कितना है? Okay, what do we have to find? Reading on A and C. Reading on A and C. Okay. I पे ये B करंट अक्रॉस B कितना है? 0.5 एम्पियर्स, राइट? रेजिस्टेंस अक्रॉस B कितना है? 6। अरे ये है ना 6। B जिसके साथ कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 6। So potential difference क्या होगा इधर का? B is equal to IR. V is equal to IR, so V is going to be 6 into 0.5, that is equal to 9 नहीं 9 volts। ये समझ में आ गया? अभी ये हम लोगों को V मिल गया। Now what will we do? It says that the same will be the PD across 3. Why? जो parallel में होते हैं। 3 है 3। हाँ, 6 into 0.5 कोई कुछ भी बोलते रहते हो। क्या? 3 volts। 1.5 कर दिया तुमने। सुनो, अभी ये दो चीजें पैरेलल में है, 2 appliances are in parallel, they are getting the same voltage across them, ना? Same voltage शेयर होता है कि नहीं दोनों के बीच में? तो इसको अगर 3 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा इसको। समझ में आया रीजन? रीजन समझ में आया? When I'm taking parallel connection, everyone, all appliances in my house are getting the same potential difference or not? तो 1.5 वोल्ट होगा ना नीचे, क्यों? क्योंकि अगर उधर 0.5 करंट चेंज होता है। आपने बोला ना सर्किट थ्रू आउट सेम रहता है। थ्रू आउट सर्किट, जब भी मैंने इन लोग दोनों को नलिफाई कर दिया तब मैंने इन लोग दोनों को 6 और 3 को अगर पैरेलल में ले लिया तब जाके सर्किट में सेम करंट पास करेगा। बट अभी इधर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे? Remember that all the circuits in the house are connected in parallel. All of them are getting 220 volts. That is why all of these will get 220 volts without doing any kind of equivalent resistance. Did you understand that much? Okay. So what will be the? Okay. So can I say the voltage across B is also going to be 3 volts? समझ में आया ये logic? If the voltage across B is 3 volts and if the resistance across B is 3 volts, then what will be the current? Then is 3 ohms. The current is ohms. Resistance. हाँ, is equal to 1 ampere. So ये रीड क्या करेगा? 1 ampere. 1 ampere रीड करेगा कि नहीं इसको? तो रीडिंग ऑन A and C,
सी का रीडिंग मिल गया मुझको, सी का रीडिंग मिल गया। अभी हम लोगों को ये इन लोग दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा कि ए में कितना रीड करेगा पता करना है हम लोगों को। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट टेक द सर्किट and solve it. This is my A, this is my A, this is how much? 6 and this is 3. बताओ 1 upon resistance is equal to, RP2 होगा that is equal to 3/6 तो RP so R across C is equal to how much? 2 ohms. Resistance across C कितना मिला हम लोगों को? 2 ohms. So can I say C ring BC, ये दोनों का मिला के 2 ohms हो गया कि नहीं? तो अभी मेरा सर्किट कैसा दिख रहा है? A+2 2 ohms मिला ना ये? अभी ये पूरा रेक्टिफाई हो गया। अभी ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में? Series. तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट? 4 सो टोटल रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 2 plus 2 that is equal to 4 ohms, right? तो 4 ohms अगर टोटल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज तो हम लोग को कांस्टेंट दिया हुआ है ना हम लोगों को? वोल्टेज कितना दिया हुआ है? Voltage is 3 volts. 3 volts is given to us. 3 volts is passing from here. This total resistance is 4. ठीक है? So EMF of the cell or V of the cell is going to be total current, that is I into R. Total current drawn into R. What is the total current drawn by us? What is the total current? 1 ampere A, B, C तीनों का देखना पड़ेगा कि नहीं हम लोगों को? 0.5. So total current is going to be how much? I across A plus I across B plus I across C. How much is it? 0.5. Total current वैसे ही मिलेगा ना? Total current plus 3 कहाँ से आती है? हाँ, A का तो दिया ही नहीं है। A का दिया है ना? B का 0.5 है। C का A का नहीं दिया। C का 1 मिला। A का भी फाइंड आउट किया ना हम लोगों ने? नहीं। अरे तो मैम एक सेकंड। रीडिंग ऑन A and C हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे नहीं किया क्या अब तक? नहीं, A का नहीं किया। A का नहीं दिया है। A का भी फाइंड आउट, A का ही फाइंड आउट करना है। हाँ। हाँ, वही नहीं सुन रहा। टोटल रेजिस्टेंस टोटल सीरीज में ये है 4. EMF of the total cell is 1.5. अच्छा आपको B और C का करंट को प्लस कर दो ना, क्योंकि वही कर लो। B और C का करंट को प्लस करेंगे तो 1.5 आता है। तो फिर वही हुआ ना A का रीडिंग 1.5 एम्पियर्स है। B और C का अगर ऐड किया हम लोगों ने, दिस इज 1.5।